Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, that is fun with magnets. So we will be talking about what is magnet. Sorry, what is a magnet, and actually we will be talking about all the things we haven't known till now about magnets. बेसिकली अभी तक मैग्नेट को हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉय है, ठीक है. हम लोग उसमें बहुत सारे इधर उधर मैजिक करते रहते थे, खेलते रहते थे उससे बेसिकली. बट अब हम क्या करने वाले हैं, उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि भाई क्या उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, उसकी जो अमेजिंग प्रॉपर्टीज वो शो करता है, उन सब चीज़ को हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेट, शेप्स ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, इवन सब्सटेंसेज ऑल्सो. इवन हम लोग थोड़ी बहुत लिटिल बिट हिस्ट्री भी देखेंगे कि भाई कैसे मिला ये मैग्नेट सभी को, ठीक है, और कैसे पता चला कि भाई मैग्नेट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है. ये सब चीज़ें आज हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. यू ऑल नो दैट वी डील विद द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड्स. तो अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत सही जगह पे हैं, यू आर वॉचिंग द राइट लेक्चर. ऑलराइट, इफ यू वांट DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can join the Telegram channel. कैसे? You need to write TTB06 in the search box of the Telegram app. If you do so, अगर आप TTB06 लिखते हैं Telegram channel के search box में, you can do that. Right, तो you will be getting the Telegram channels for different classes, right? अलग अलग classes के आपको channels मिल जाएंगे. Then you can join the channel as per your need, as per your class. All right, so that is the main thing also. Now you can see this is the team which is going to help you a lot, because this team is actually making sure that we do provide you the quality lectures, the quality education you deserve, so that you can crack all the examinations, whether it is your school examination or the Olympiads. Basically we are trying to give you the quality lectures so that you can crack and you can take your aim high and achieve all your goals. That is the main motive of us, right? Now see, देखिए ये जो वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, रियल मतलब अभी जो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, these are definitely free for everyone. So what you need to do is you need to do your part. What is that? You need to share these video lectures to every single person you know, every single friend you have, so that ये जो lectures हैं वो सभी बच्चों तक जाएं, और जो ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो इनसे स्टडी करें. अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत सारे बच्चों का हेल्प हो जाएगा, वो अपने गोल्स को क्रैक कर पाएंगे जस्ट लाइक यू. Alright, so you need to do your part, you need to share these video lectures to every single person. Alright, in accordance to that, ये जो video lectures है वो तो free हैं ही हैं. In accordance to that, we have also prepared some packages for you like helping in your journey definitely. Right, so for that you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. So if you go on this website, you will be getting like two type of packages. The one is the full package, the second one is the test series. So if you are interested in the like year-long journey, the whole journey, then you can definitely join the full package. And if you are interested only in the test series, then you can join the test series, right? तो देखिए जो full package है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें provided होंगी, because ये full package अपने आप में पूरा full है. Every single thing is being included. For जैसे कि अब अगर हम बोलें कि study material सबसे most important होता है. सो स्टडी मटेरियल जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस लेकर है कि भाई हम इस एग्जामिनेशन को अगर क्रैक कर रहे हैं तो उसके लिए फोकस्ड आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, दैट इज़ द मेन थिंग, राइट. नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, ये आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं, राइट. देन यू कैन सी द होमवर्क सबमिशन फीचर. तो होमवर्क सबमिशन फीचर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. होमवर्क सबमिशन फीचर में आपको होमवर्क करना होगा और हमें सबमिट करना होगा, तो मतलब ये पार्ट भी हम लोग ने इंक्लूड किया है, दैट यू आर डूइंग योर होमवर्क, राइट. उसके बाद आप देख सकते हैं बाई वीकली क्विजिंग, ये अब टेस्टिंग पार्ट आ जाता है जो बहुत ही यू कैन से बहुत ही फ्रीक्वेंटली होगा, लाइक एक वीक में 2 times होगा, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट. सो बेसिकली यू विल बी लाइक वॉचिंग द वीडियो, देन यू आर गिविंग अ टेस्ट, वॉचिंग द वीडियो, यू आर गिविंग अ टेस्ट, लाइक दैट. पूरा ईयर लॉन्ग आप ऐसा करने वाले हैं. And then it would be like the periodic test papers. These periodic test papers actually आपको ये बताएंगे कि भाई जो फाइनल एग्जामिनेशन जिसको आप फेस करने वाले हैं उसका पैटर्न क्या है, उसके पैटर्न से फेमिलियर हो जाएंगे आप लोग,
ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा होगा बिकॉज आप फैमिलियर हो जाएंगे, तो आपको डर कम लगेगा, आपको पूरा पैटर्न ऐसा ही लगेगा जैसे आप रिहर्सल कर रहे हो, जैसे आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे आप सिर्फ पीरियोडिक पेपर दे रहे हो, राइट। तो दैट विल बी सो मच ग्रेट थिंग टू डू, राइट। सो दैट इट इज इन दी लेक्चर इन दिस, यू कैन सी द पैकेज हियर, राइट। एंड द टेस्टिंग पार्ट जो कि हमारा टेस्ट सीरीज में है, you can get the periodic test papers recorded in live classes along with the bi-weekly quizzes. So these two packages are here. If you want to buy them, then you can use my code CYLIVE so that you can get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you are like really much want to know more about these packages or want to know about why you should even consider these packages, then you can definitely call us on the number 919549041111. Alright, that would be so great if you call us, and we are trying to resolve every single query of yours, so you do that. Alright, now it's time for the promise. Alright, so make sure you do that, right? So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is a must thing to do, right? So you need to do this, ठीक है। अभी तक ये हमारा 7 चैप्टर है, right? And हम लोगों ने अभी तक 6 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। So what you need to do is to revise them again and again so that you do not forget while studying this 7th chapter, right? So you need to do what? You need to revise it again and again and again, alright? Alright, now let's move on. देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, that is मैग्नेट। सबसे पहला मैग्नेट, little bit of story, little bit of knowledge, what is that, even वो छोटा सा मैग्नेट क्या होता है, किसका बना होता है, कैसा होता है, we are doing, मतलब we will be looking forward to do that. Then we will be watching the type of substances. कितने तरीके के substances होते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, magnetic substances, non-magnetic substances. And then we will be talking about the types of magnets. कितने तरीके की magnets होती हैं, natural, artificial. And then we will be talking about the temporary and permanent magnets. Electromagnet we will be talking about. Properties of bar magnet we will be talking about. And these are the subtopics जिन सब टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। छोटे छोटे टॉपिक जिनको हम आज पढ़ेंगे। सो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज दैट? दैट इज द इंट्रोडक्शन टू दिस टाइप ऑफ मटेरियल। आर यू एबल टू सी दिस? दिस इज लाइक यू कैन से द नेचुरल वन, ठीक है। ये एक नेचुरल मैग्नेट है, ऑलराइट। सो तुम खुद से बताओ, नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि भाई वो नेचर से हमें प्रोवाइडेड है, राइट? वो हमको नेचर के थ्रू मिली है, राइट? दैट इज द मेन थिंग हियर। क्योंकि वो हमको नेचर के थ्रू मिली है, इसीलिए वो नेचुरल मैग्नेट है, राइट? अब तुम खुद से सोचो कि नेचर में पहले से मैग्नेट प्रोवाइडेड थी, तो हमारे पास तो फिक्स शेप की मैग्नेट आती है, वो क्या है? सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई भी नहीं जानता था ना कि भाई मैग्नेट कहाँ है, क्या है, जब किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कोई चीज़ भी होती है कि नहीं, ठीक है, उस वक्त क्या हुआ था कि एक शेफर्ड था, ठीक है। वो अपनी शिप्स को राइट, शीप्स को फूड खिलाने के लिए बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स पे लेके जाता था, ठीक है, ताकि उसकी जो शीप्स थी वो अच्छे से जो ग्रासेस फैली हुई हैं उनको खा लें, ठीक है। तो वैसे करता था। फिर एक दिन वो एक पहाड़ी पे चढ़ा, और उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद जब वो चल रहा था तो उसकी सारी शीप्स अपना ग्रास खाने लग गई, है ना। ही वॉज वॉकिंग ओनली, ठीक है, वो अपना फ्रीली वॉक कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, उसकी जो स्टिक थी, जिस लकड़ी को लेके वो चलता था, ठीक है, उसकी जो स्टिक थी, वो जो स्टिक है वो अचानक से किसी एक यू कैन से स्टोन टाइप से स्टिक हो गई, उससे चिपक गई, ठीक है। अब वो चिपकी क्यों? क्योंकि उसके पास जो स्टिक थी वो कैसी थी, थोड़ा पार्ट मतलब पीछे का पूरा पार्ट उसका वुड का बना था, आगे का छोटा सा पार्ट उसमें आयरन का पार्ट था, ठीक है। तो वो जो स्टिक थी वो कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड वुड थी, ठीक है। अब जो छोटा सा आयरन वाला पार्ट था वो पार्ट उस स्टोन से जाके चिपक गया, ठीक है। उसने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, थोड़ी देर में वो हट भी गया, है ना। तो वो बड़ा हैरान हो गया, व्हाट इज दिस, मतलब ये एक अलग ही तरीके का पत्थर है ना। और फिर उसने वापस से ट्राई किया, उसको वापस से चिपकाया, वो चिपक गया वो आयरन, एंड देन ही डिड इट अगेन, उसको हटा लिया उसने, और तब जाके उसे लगा कि वाह ये तो एक चमत्कारी पत्थर है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। उसे ये पता नहीं था सिर्फ आयरन की बात हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है। और एक्चुअली में उसने फिर सब लोगों को बताई, ठीक है। अब क्योंकि वो जो पत्थर था वो किस जगह का था, वो मैग्नेशिया नाम की जगह का था,
ठीक है, मतलब वो जो पत्थर मिला एक्चुअली में, वो जो जो पूरा का पूरा माउंटेन था जिसके ऊपर शैफर्ड अपनी शीप्स को घास खिलाने लेके जाता था, वो जो पूरा का पूरा माउंटेन था वो मैग्नेशिया नाम की जगह का माउंटेन था। इसी वजह से उस पत्थर का नाम क्या पड़ा, मैग्नेट पड़ा। ठीक है, और वो जो पत्थर था इकलौता ऐसा पत्थर था, वो क्या करता था, सारी की सारी आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता था। तो वहाँ से हमें क्या मिला, नेचुरल मैग्नेट मिला। अर्थ ने सबसे पहले हमें जो बताया कि भाई यहाँ एक मैग्नेट नाम की भी चीज़ होती है, कुछ एक ऐसा अमेजिंग थिंग जिससे सारे के सारे आयरन के जो पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इवन अदर मेटल्स टू, जस्ट लाइक निकल, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा वहाँ से पता चला लोगों को कि ये भी कोई चीज़ है, नाम दिया गया, और तब से ये मैग्नेट के नाम से फेमस है। ऑलराइट, और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसे ही कोई पत्थर एग्जिस्ट करता है और इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग खेलने के लिए तो यूज़ करते ही है, बट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैग्नेट यूज़ होती है। रियली सचमुच में मैग्नेट यूज़ होती है। कई जगह पे टेम्परेरी मैग्नेट यूज़ होती है, कई जगह पे परमानेंट मैग्नेट यूज़ होती है। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ऑलराइट, सो देखो, अ मिनरल वाज डिस्कवर्ड इन द टाउन ऑफ मैग्नेशिया व्हिच वाज फाउंड टू हैव अ वंडरस प्रॉपर्टी। व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी? अट्रैक्टिंग ऑल द आयरन मटेरियल्स। राइट, तो आयरन के बने हुए चीज़ों को वो अट्रैक्ट करती थी। सबको लगता था वाओ कितना अमेजिंग है, ये ऐसे कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, क्या ऐसा वंडरस पत्थर है ये, बिल्कुल ऐसा सब लोगों को लगता था। ठीक है, इट कुड अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। दिस मिनरल इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। ठीक है, इसको मैग्नेटाइट एंड देन इट्स कॉल्ड मैग्नेट। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके का वो दिखता था, नेचुरल जो है मैग्नेट इस तरीके का दिखता था। हमारा अपना बनाया हुआ जो ह्यूमन मेड है वो तो फिर अलग ही दिखता है, वो सिर्फ हम लोग अपनी अलग अलग शेप दे सकते हैं। आई विल बी टेलिंग यू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। ठीक है, तो देखो अभी हम देखते हैं व्हाट इज दैट मैग्नेट। डू यू सी दिस? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट है एक्चुअली में दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज नेम्ड एज हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका जो शेप है वो टोटली सिमिलर है एक हॉर्स के शू के। लिटरली इट इज सिमिलर, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो पाँव होता है, हॉर्स का जो पाँव होता है उसी के शेप का होता है ये, इसीलिए इसका नाम हॉर्स शू मैग्नेट है। ऑलराइट, और ये ह्यूमन मेड है, मतलब ऐसा नेचुरल में ऐसा नेचुरली तुमको नहीं मिलेगा रेड ब्लू एंड दीज पार्ट जिनके ऊपर NS लिखा हुआ है, ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें नेचुरल, बट इट इज ह्यूमन मेड। वी मेड इट लाइक दिस ताकि सबको ईजी पड़े, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पूरा मेंशन करके हम उनको दे। राइट, यू कैन सी a magnet is a material or object capable of attracting iron, producing a magnetic field outside itself and aligns itself in north-south direction. तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। और आप खुद से सोचेंगे उस मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे आप इस हॉर्सशू मैग्नेट को देखो, हॉर्सशू मैग्नेट के चारों तरफ देयर इज अ फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और उस फील्ड के अंदर अगर आप कोई मैग्नेट की चीज लेके चले जाओ तो ये अचानक से अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे लेट मी टेल यू अबाउट इट, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे मान लो कि इसका जो पूरा का पूरा एरिया है, जो जैसे मान लो यहाँ तक के एरिया में इसका फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, पूरा ऐसे करके, तो अगर तुम यहाँ पे कोई आयरन का पीस रख दोगे ना तो ये फटाफट से जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम आयरन का पीस यहाँ रखोगे ना तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये चीज शो करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही कोई आयरन चला जाता है, आयरन पीस चला जाता है, तो वो फटाफट से जाके मैग्नेट के चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कोई सब्सटेंस रखोगे आयरन का तो वो स्टिक नहीं होगा, है ना। इसी की वजह से बोला जाता है कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, उसका खुद का फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, थर्ड थिंग क्या कि वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है हमेशा। जैसे खुद से करेगा, कैसे करेगा? जब हम उसे फ्रीली रोटेट करने देंगे तब। मैं आपको बताऊंगी कैसे। जब आप किसी एक बार मैग्नेट को ऐसे हैंग कर दो, ठीक है, एक बार मैग्नेट को ऐसे हैंग कर दो और उसको फ्री टू रोटेट कर दो, वो कैसे भी रोटेट कर सकती है, वो टोटली फ्रीली उसको रोटेट हो सकती है, वो उस तरीके से एनेबल कर दो। एंड व्हेन यू डू दैट तो मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप फिक्स कर लेगी। ये उसका प्रॉपर्टी होता है।
ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी एंड बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज द नॉर्थ पोल, विच वन इज द साउथ पोल. Alright, so now you note this down, the definition of magnet here. ऑलराइट, तो देखो तुम्हें अभी मैग्नेट के बारे में पता चला. मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और क्या क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखता है और क्या क्या करता है, खुद को अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है इफ यू लेट दैट मैग्नेट फ्रीली मूव. ऑलराइट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मटेरियल. तुम्हारे आसपास जितना भी मटेरियल्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, आप उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं, तो ये दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं. कैसे? एक तरफ हम उन सबको रख लेते हैं जो सारे के सारे मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, और दूसरे तरफ हम उनको किस तरीके से रखते हैं, जो कि सारे के सारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. ऑलराइट, तो हमने क्या किया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया सभी सब्सटेंसेस को. ऑलराइट, जिसमें से एक ऐसा है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते. ठीक है, अब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया, उन्हें हमने नाम दिया मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, तो the materials which are attracted by a magnet are called magnetic materials. जैसे कौन होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर अलॉयज, स्टील, ये सब जो मटेरियल्स हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मैग्नेट से जाके स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, इफ यू कैप दैम इन द मैग्नेटिक फील्ड, so they got stick towards the magnet, they are getting attracted by the magnet. Such type of materials are named as the magnetic material. और ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो ऐसे मटेरियल्स कौन हुए, रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, है ना. तो इनको हमने क्या नाम दिया, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. The materials which are not attracted by a magnet are non-magnetic material. ठीक है, तो अब आप डिसाइड करोगे कि आपके आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें से मैग्नेटिक कौन सा है और नॉन मैग्नेटिक कौन सा है. ठीक है, मेक श्योर यू डू दैट, बट बिफोर दैट नोट दिस डाउन. ठीक है, ठीक है, तो अब हम चले आगे. नाउ वी नो टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कि भाई ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे आर टर्म्ड एज द मैग्नेटिक मटेरियल, और ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, दोज आर टेकन एज द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट के जो टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हम मैग्नेट के टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो भाई एक मैग्नेट तो वो है जो नेचुरली अर्थ हमें दे रही है, बाय नेचर, प्रोवाइडेड बाय द नेचर, राइट. उसको हमने क्या बोला,
मतलब वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है, कोई अलग ही शेप का पत्थर होता है, मीन्स इट कैन बी लाइक आर्बिट्ररी शेप, कैसा भी शेप हो सकता है. एंड कैन यू सी द स्टेपल पिंस हियर, जो स्टेपल की पिंस होती हैं वो देखो कैसे अट्रैक्ट हो रही हैं. सो दैट मीन्स दे आर एबल टू अट्रैक्ट दी स्मॉल पीसेज ऑफ मटीरियल्स, मैग्नेटिक मटीरियल्स, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है एक्चुअली में दिस इज द नेचुरल मैग्नेट और इसका नाम क्या है, Fe3O4 मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन ऑक्साइड या फिर लोडस्टोन, ठीक है, इन सब नामों से इन्हें बुलाते हैं. So देखो there are two types of magnet. The number one is the natural magnet, the magnet given by the nature, and that is termed as this much of Fe3O4 magnetite, black iron oxide, lodestone. And there are the magnets which are made by humans. Those are termed as the artificial magnets, all right. और उनको तो बस हम artificial या फिर man made magnet कहते हैं. Examples उसके बहुत सारे हैं. क्या examples हैं उसके? You can see here. You can see the bar magnet, all right. You can see the bar magnet here. You can see the horseshoe magnet I told you, right. Ball-ended magnet is one of those. Right, so you can get that, आपको पता चलेगा that this type of magnet, the artificial and the man-made magnets are termed as the magnet made by the humans, right? Those are termed as the artificial, and there are magnets which are given by the nature are taken as the natural magnets, ठीक है? तो अब आप देखो, अभी आपने ये पता किया. Let's talk about their definition, how to write them. तो देखो नेचुरल मैग्नेट को आप किस तरीके से लिखेंगे, अ मैग्नेट विच अकर्स नेचुरली एंड इज नॉट मेड बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है. एक ऐसा मैग्नेट जो कि क्या कर सकता है, बिल्कुल नेचुरली अकर्ड है, एंड दिस इज एक्चुअली यू कैन से राइट. तो दिस इज नेचुरली अकर्ड, नॉट दैट, ठीक है, आर्टिफिशियली हमने नहीं बनाया है, ठीक है, उसको नेचुरली अकर होने दिया, हो चुका है एक्चुअली बेसिकली. सो उसका एग्जांपल कौन है, मैग्नेटाइट, ठीक है, वो एक आयरन का ओर होता है जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है. Fe क्या होता है, आयरन का सिंबल होता है, O इज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है. So that is the thing you should note down. Also, now let me tell you how to define the artificial magnet here. ठीक है, तो देखो, a substance to which properties of the natural magnet are imparted by artificial means is called artificial magnet. जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, तो ऐसी मैग्नेट्स, ऐसे सब्सटेंसेस, एक्चुअली में मैग्नेट तो नहीं बोलेंगे बट सब्सटेंसेस जिनके अंदर अगर हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज दे दें तो वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाती है, ठीक है. अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि हम नहीं दे सकते, हम इन प्रॉपर्टीज को जनरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल मैग्नेट की ही प्रॉपर्टीज को उसको दे देते हैं, ठीक है. और ऐसा हम कर सकते हैं. आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू कैन डू दैट. हम लोग देखेंगे हाउ टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, ठीक है. तो जो नेचुरल मैग्नेट हुआ उसकी प्रॉपर्टीज किसको दे देंगे, हम एक अलग सब्सटेंस को दे देंगे, और जब उस सब्सटेंसेस के पास वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगा. एंड वी गिव दैट अ डेफिनेट शेप, आइदर इट इज बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सो वी गिव इट अ शेप. तो अगर कोई मैग्नेट जो कि एक पर्टिकुलर शेप की हो, यू गॉट दैट इज एन आर्टिफिशियल वन, वी मेड इट, वी ह्यूमंस मेड इट, राइट. And the magnet which have indefinite shape, no specific shape, then you can take that as the natural magnet. और क्या होता है, जो artificial magnets होती हैं उनको हम natural magnet की properties दे देते हैं, ठीक है. तो that how you can define the natural magnet and the artificial one. All right, now note these down. Alright, अब now you know the types of magnets, but इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कुछ और टाइप की मैग्नेट्स होती हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ कि हम लोगों ने बनाई हैं वैसे तो, but they are literally the temporary and the permanent magnets. तो मतलब ऐसे substances भी होते हैं
जो कि क्या करते हैं, अपनी इस प्रॉपर्टी को, देखो हमने अभी क्या किया, हमने अभी आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई, कैसे, नेचुरल मैग्नेट से। कैसे बनाई भाई, नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को आर्टिफिशियल मैग्नेट को दे दिया, ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट क्रिएट हो गया। बट अब वो जो यू कैन से सब्सटेंस है जिसको हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देनी चाहिए, अगर वो सब्सटेंस लाइफ टाइम के लिए क्या करे, बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर उस प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखे, ठीक है, उस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखे, तब तो हम उसे क्या बोल देते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोल देते हैं। लेकिन अगर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो उस प्रॉपर्टी को, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उसको दी जा रही हैं, वो उसको ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है, वो उसको थोड़े टाइम बाद छोड़ देता है, ठीक है, उससे गुम हो जाती है, वो प्रॉपर्टीज को पकड़ ही नहीं पाता, उनको रख ही नहीं पाता। ऐसे सब्सटेंसेस को हम फिर क्या बनाते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो दैट इज द वन थिंग, द टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मतलब ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ज्यादा देर तक नहीं रख पाती हैं, ठीक है, ये इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ज्यादा देर तक नहीं रख पाती हैं, जल्दी से जल्दी ये क्या कर देती हैं, उनको लूज कर देती है, उनको खो देती हैं, ठीक है। तो देखो, द मैग्नेट्स विच कैन नॉट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम are called temporary magnets. These magnets are made up of the soft iron. तो मतलब सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे दे तो वो ज्यादा देर तक संभाल के नहीं रख पाता है, वो उन्हें खो देता है, जल्दी से जल्दी उन्हें रिटेन नहीं करता, खो देता है, ठीक है, थोड़े से टाइम में ही गुम हो जाती हैं उसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उनको हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स बोल देते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज अ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने वायर से कनेक्ट किया एंड वी रैप द वायर अराउंड अ आयरन नेल, ठीक है, एंड देन द अदर एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द आयरन नेल हियर, ये आयरन नेल अब बनेगी मैग्नेट व्हेनेवर यू कनेक्ट दैट। जैसे ही आप इन वायर को के लिए सर्किट कंप्लीट करोगे, जैसे ही सर्किट कंप्लीट करोगे, ये जो आयरन नेल है वो मैग्नेट बन जाएगी, और जैसे ही आपने सर्किट को ब्रेक किया, ये आयरन नेल मैग्नेट बनना बंद कर देगी। तो इसको जो प्रॉपर्टीज मिली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो मिली, वो तुरंत गायब। जैसे ही आपने सर्किट ऑफ किया, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म, तो ये ज्यादा देर तक रख ही नहीं पाती। दैट इज वाई दिस इज नोन एज द टेम्परेरी मैग्नेट। वहीं पर अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं, तो देखो, द मैग्नेट्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। दीज परमानेंट मैग्नेट्स आर जनरली मेड अप ऑफ स्टील। तो ऐसी मैग्नेट जो कि बहुत टाइम तक इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर होल्ड करके रख पाती हैं, दोज आर टर्म्ड एज द परमानेंट मैग्नेट। तो वो जल्दी से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करती है ना, वो काफी टाइम तक संभाल के रखती हैं। मोर पावरफुल मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ एल्निको। एल्निको एक अलॉय होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो एल्निको होता है ना, एल्निको, ये एल्निको एक अलॉय होता है। और तुम्हें पता है अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है जब हम 2-3 मेटल्स को मिक्स अप कर दें, ठीक है। तो देखो, ये जो एल्निको है, देयर आर 3 मेटल्स इन मिक्स्ड अप इन दैट एंड वी क्रिएटेड अ न्यू अलॉय दैट इज नेम्ड एज एल्निको। इसके अंदर देखो, Al for aluminium, Ni for nickel, Co for cobalt. So this Alnico is an alloy made up of aluminium, nickel, cobalt, and this is made, you can say it is used actually, ठीक है, it is used to make the permanent magnets, ठीक है। अब देखो, और फ्रॉम फेराइट, फेराइट से भी हम परमानेंट मैग्नेट्स को बना सकते हैं। फेराइट इज ऑल्सो अ सब्सटेंस। ये जो फेराइट वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन से स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स, यू कैन ऑलवेज यूज द अलॉयज, ठीक है। इसका आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, हॉर्सशू भी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है, बिकॉज हॉर्सशू मैग्नेट भी क्या करता है, काफ़ी टाइम तक अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड अप करके रखता है। तो दिस कैन बी टेकन एज ऑल्सो द, यू कैन से द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो अब आप इन्हें फटाफट से नोट कर लें।
Alright, now let's move up to different shapes, or you can say first of all let's talk about the electromagnet. So देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ इस तरीके से होती है. सिंपली तुम्हें क्या क्या चाहिए होता है, तुम्हें एक आयरन नेल चाहिए, तुम्हें एक पीस ऑफ वायर चाहिए, थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए वो पीस ऑफ वायर, ठीक है. थर्ड थिंग यू आर नीडिंग अ सेल, अ वर्किंग सेल शुड बी देयर, ठीक है. तो अगर तुम्हें ये तीन चीजें मिल जाती, इफ यू गेट टू कलेक्ट द आयरन नेल, बिग आयरन नेल, ठीक है, लॉन्ग वन, और लिटिल बिट ऑफ बिग वायर, piece of wire, and then you need a cell. If you have three things, then you can make your own electromagnet. कैसे बना सकते हो तुम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट? You can use a cell. सेल के एक टर्मिनल से तुम वायर का एक एंड अटैच करोगे, देन यू रैप द वायर अलोंग द नेल, एंड देन यू कैन गेट दैट कि दे जो सेकेंड एंड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो. व्हेन जैसे ही तुमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, यू आर गोइंग टू गेट अ मैग्नेट, और वो मैग्नेट क्या होगी, यही आयरन नेल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, एंड इट विल अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीसेस. इवन पेपर क्लब्स जो होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, स्टैपल पेन्स को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, राइट. सो यू आर गोइंग टू गेट अ not the permanent, but you can say the temporary magnet, right? So this is known as the electromagnet. Why electromagnet? Because as soon as you provide the electric current, it behaves as a magnet. जैसे ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को खत्म कर दिया, लेट्स से यू स्विच ऑफ दी सर्किट, जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया सर्किट को, वैसे ही क्या होगा, ये आयरन जो है, आयरन नेल जो है वो मैग्नेट बनना बंद हो जाएगी, ठीक है. सो दैट इज द मेन थिंग. एज सून एज यू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, and as soon as you drop that thing, you stop the electric current, then it behaves as a normal iron nail, right? Then the magnetic properties just lose, ठीक है. दैट इज द मेन थिंग. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके से क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, और हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है. जैसे हमको जब मैग्नेट चाहिए तब तब हमने इसे मैग्नेट बना लिया, हमें जब मैग्नेट नहीं चाहिए तब तक हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो ये मैग्नेट नहीं बनी, ठीक है. तो ये हम पे डिपेंड करता है. वी कैन ऑल्सो इंक्रीज इट्स स्ट्रांगनेस, हम इसकी स्ट्रांगनेस बढ़ा सकते हैं. कैसे? अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है प्रोवाइड करते हैं, सो वी मेक इट लाइक अ बिग, यू कैन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट. अगर हम इस पे नंबर ऑफ वायर जो ऐसे रैप किए हुए हैं ना, ये नंबर ऑफ वायर जो टर्न्स हैं, इन टर्न्स को अगर हम इंक्रीज कर दें तो ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, और बहुत सारी यूजफुल कंडीशंस भी हैं. जब जब हमें इसे यूज़ करना हुआ, हमें बहुत अपने अकॉर्डिंग से करना पड़ता है. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हेनेवर यू वांट टू यूज़ इट, यू कैन मेक योर ओन, राइट. नोट दिस डाउन. ऑलराइट, नाउ देखो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स, बट बिफोर लेट्स सी द डिफरेंट शेप्स. नाउ सी, दिस इज द बार मैग्नेट, जो सिंपल एक बार की तरह दिखाई देती है. सो दिस इज अ बार मैग्नेट. दिस इज अ रिंग मैग्नेट, जो कि रिंग की शेप की होती है. दिस इज अ हॉर्स शू मैग्नेट, जो कि यू की तरह दिखाई देती है ना. तो है तो ये शेप ऑफ द हॉर्स शू, बट इट इज ऑल्सो द शेप ऑफ यू, ठीक है. फिर आप देखो मैग्नेटिक निडल, इट इज दिस टाइप ऑफ शेप, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक निडल. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज दैट. एंड यू कैन सी द डिस्क मैग्नेट ऑल्सो. वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स अवेलेबल होती हैं. इवन सिलेंड्रिकल जो है मैग्नेट्स भी होती हैं, है ना, और भी न जाने कितनी कितनी होती हैं. बट द थिंग इज यू शुड डेफिनेटली नो अ मैग्नेट इज जस्ट अ सब्सटेंस विच अट्रैक्टेड द मैग्नेटिक मटीरियल्स, राइट. तो भले ही कैसा ही शेप हो, काम तो उसको वही करना है, राइट. बट यू शुड नो ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, ठीक है. चलो अभी हम, और पता है ये जो इतनी शेप्स होती है ना, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल होती है, ये नेचुरल नहीं होती. बिकॉज नेचुरल वाले का तो, जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसका तो कोई शेप ही नहीं होता, राइट. वो तो ऐसे ही होती है, मतलब जो उसका शेप होता है, जैसा आर्बिट्रेरी, जैसा रैंडमली उसका जो शेप होता है वो उसका शेप होता है, जस्ट लाइक अ स्टोन, ठीक है. जैसा कोई स्टोन का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वैसा ही है ना.
अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी जो मैग्नेट का होता है वो यही होता है कि ये क्या करती है, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टूवर्ड्स itself. That is the property, the first property of the bar magnet. Also it is the property of every magnet, but let's talk about the bar magnet here. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे टेस्ट आउट कर सकते हैं भाई कि क्या सचमुच में ऐसा पॉसिबल है। सो वैसे तो अभी तक हमने खेल खेल में बहुत कुछ टेस्ट किया होगा, है ना, मैग्नेट्स हम मजे बहुत करते हैं, ठीक है, तो अभी तक हमने टेस्ट तो कर लिया होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू नो दिस थिंग, हाउ टू नो, सेटिस्फाई और वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पेपर लेना है, ठीक है, कार्डबोर्ड ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर क्या करना है, आपको आयरन फिलिंग स्प्रेड आउट कर देंगे, पूरे पेपर पे आयरन फिलिंग्स को आप क्या कर देंगे, स्प्रेड आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप उसको स्प्रेड आउट कर देंगे वैसे ही क्या होगा, उसके बाद जैसे आपने स्प्रेड आउट कर दिया उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक बार मैग्नेट उठाना होगा और उस बार मैग्नेट को पूरे पेपर के ऊपर क्या करना है, उसको पूरा पेपर के ऊपर उसको फैलाना है, ठीक है, बार मैग्नेट को लेके जाना है पूरे पेपर पे, और क्या होगा, जितनी भी आयरन की फिलिंग्स होंगी वो सब उस बार मैग्नेट पे जाके स्टिक हो जाएंगी। और किस तरीके से स्टिक हो जाएंगी, कुछ लाइक दिस, यू कैन इवन कीप दैट मैग्नेट ओवर देयर, आप कार्डबोर्ड पे रख भी सकते हैं, जब आप रखेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द मैग्नेटिक you can say the attraction like this, all the iron fillings are getting attracted by this magnet, ठीक है। even you can try this with the horseshoe also, do it, ठीक है, horseshoe आप खुद से check out कर सकते हैं, but still it will also get you some shape like this of the iron fillings, actually it arranges the iron fillings according to its need, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से इस प्रॉपर्टी को नोट करें and then we will be talking about property 2. Alright, now let's talk about property 2. What is that? What is this property? Let's talk about it. Each magnet has 2 poles. So remember that thing. हर एक मैग्नेट के पास क्या होते हैं, 2 poles होते हैं. The one is the north pole, the second one is the south pole. ठीक है, तो can you see the bar magnet, the big bar magnet? This is the south pole, this is the north pole. ठीक है, so you can get that 2 poles होते हैं हर एक मैग्नेट के पास. रिमेंबर दैट, कभी भी कोई मैग्नेट ऐसा नहीं होता जिसके पास सिर्फ नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। एवरी मैग्नेट इज गोइंग टू हैव दी you can say 2 poles, right? The magnetic pole seems to come from 2 points near the ends. These preferred regions of attraction are called the magnetic poles. All magnets have maximum attraction at their poles. Poles of a magnet remain slightly inside from the end points, and let me tell you what it is saying here. देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया होता है ना, साउथ पोल के इधर ये वाला एरिया, ठीक है, और नॉर्थ पोल के इधर ये वाला एरिया, तुम्हें पता है ये जो दोनों मैंने एरियाज मार्क किए हैं, ये जो एरियाज होते हैं पूरी मैग्नेट के मैक्सिमम अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखते हैं। तो मतलब आपने जो आयरन नेल्स वाला जो आयरन फिलिंग्स वाला जो अभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों पर ही मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन फिलिंग स्टिक हो जाती हैं। इस मिडल पार्ट में उतनी नहीं होती हैं, है ना, मिडल पार्ट में उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती हैं जितनी कि नॉर्थ और साउथ इंडिविजुअली होती हैं, ठीक है। दिक्कत क्या है, यू कैन से द फैक्ट इज कि नॉर्थ और साउथ पोल जो पोल्स होते हैं उन पोल्स पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है आयरन या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स का, ठीक है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या, सेकेंड थिंग ये कि ये जो पोल्स होते हैं ये इस जगह पे नहीं होते, इस पॉइंट पे नहीं होता, ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं होता। एक्चुअली में जो पोल्स होते हैं दे आर स्लाइटली इनसाइड द मैग्नेट, सो दे आर लाइक समवट हियर, यहाँ पे होता है पोल साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल, ठीक है, दे आर लिटिल बिट inside, they are little bit inside the magnet here, ठीक है, that is the main thing you need to know. So ये जो poles होते हैं क्या तुम्हें ध्यान में रखना है, ये जो poles होते हैं they have the maximum attraction,
ठीक है. सेकेंड थिंग, दे आर लिटिल बिट स्लाइटली इनसाइड द मैग्नेट. ठीक है, तो अब आप इसे नोट करें. Alright, now let's see the third property of the magnet, which is also an important one. So third property क्या कहती है? A freely suspended magnet always align itself along the north-south direction. So what is it is saying? It is that कि let's say you have a bar magnet and what you do, जैसे ही आपके पास बार मैग्नेट आए, आप उसको क्या करो, इस मिडल पॉइंट से थ्रेड से उसको बांध दो. ठीक है, किसी थ्रेड से उसको बांध के ऐसे लटका दो. ठीक है, इफ़ यू डू दैट, अगर आप उसको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से बांध के ऐसे अच्छे से अगर आप उसको लटका देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं एंड लेट इट रेस्ट. ठीक है, उस मैग्नेट को फिर रेस्ट करने दो, तो क्या होगा, स्लोली स्लोली वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेगी नॉर्थ और साउथ को पॉइंट करते हुए. तो जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज द नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज द साउथ पोल. ठीक है, so by that you are going to get the two poles on this magnet. So you are going to get to identify which one is the north pole, which one is the south pole. ठीक है, तो ऐसा आपको कैसे पता चलेगा? whenever you hang the bar magnet through a thread and let it rest, after being at rest it will definitely going to point you into the north and the south direction. ठीक है, 3 फटाफट से नोट करो and then we will be talking about 4th also. ऑलराइट, आगे बढ़े फटाफट से. हाँ, तो चलो 4th प्रॉपर्टी देखते हैं. 4th प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. वो क्या करते हैं, दूर दूर भागते हैं. और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज देयर प्रॉपर्टी ऑल्सो. तो देखो, एक बार मैग्नेट को हमने हैंग कर दिया, उसको लटका दिया. ठीक है, दूसरे बार मैग्नेट को, उसका नॉर्थ पोल को हम पहले वाले के साउथ पोल की तरफ लेके जा रहे हैं. सो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड. ये वाली जो मैग्नेट है वो इसकी तरफ आ जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी इसके तरफ. ठीक है, लेकिन ऐसा सेम पोल्स के साथ नहीं होगा. अभी आप देखो, इस तरीके से हमने इसे लटका दिया और हम नॉर्थ पोल को ही नॉर्थ पोल के पास लेके जा रहे हैं. So this magnet will move away and it is showing you that actually these like poles, the same poles do repel from each other, they go away from each other, and when you are like placing opposite poles towards each other they got attracted. ठीक है, that is also a property you need to know. So repel क्या होता है, हमेशा same poles repel होते हैं, north north, south south, and the poles which are totally opposite, then you can say the north south they got attracted. ठीक है, same poles repel होते हैं and और जो unlike poles यानी कि different poles होते हैं they got attracted. ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे and then we will be moving up to the 5th one. ठीक है, this is the 4th, 5th one. ऑलराइट, अब हम पढ़े 5 की तरफ. 5, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. आई टोल्ड यू, आपको कभी कोई ऐसा मैग्नेट नहीं मिलेगा कि भाई जिसमें सिर्फ साउथ पोल ही है या फिर सिर्फ नॉर्थ पोल ही है. ऐसा कभी नहीं होगा. हमेशा एक मैग्नेट के पास 2 पोल्स रहेंगे. इवन यू ब्रेक दैट मैग्नेट. मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट हो, ठीक है, लेट्स से यू हैव दिस मच ऑफ बिग मैग्नेट एंड यू समहाउ यू ब्रेक इट फ्रॉम हियर. जब आप इसे यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो आपको पता है, नाउ यू गॉट 2 मैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ द ब्रोकन मैग्नेट. नाउ यू गॉट 2 मैग्नेट्स और हर मैग्नेट के पास 2 पोल्स हैं. सो इट इज टोटली अ ट्रू थिंग कि सचमुच में एक अकेला पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता. देयर आर ऑलवेज पेयर्स, नॉर्थ साउथ, देयर विल ऑलवेज बी पेयर्स. यू कैन सी, अगर आप इस वाले को भी और ब्रेक कर दोगे, अगेन यू आर गोइंग टू गेट 2 पोल्स. ठीक है, इसको और ब्रेक कर दो, इस वाले को और ब्रेक कर दो, अगेन यू आर गोइंग टू गेट 2 पोल्स हियर एंड दैट वुड बी द पेयर साउथ नॉर्थ. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू नो.
कभी भी पोल्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं. यू नीड टू रिमेंबर दैट. ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर वॉट इज दैट, अगर आप किसी मैग्नेट को तोड़ दोगे तो आपको टूटी हुई मैग्नेट नहीं मिलेगी, आपको 2 नई मैग्नेट मिल जाएंगी. समझे? तो फटाफट से इसे फटाफट से लिखो इस प्रॉपर्टी को. ऑलराइट, तो अभी हम 6th की तरफ चलते हैं. ठीक है. रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. अभी देखो, श्योरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या हुआ. मैं आपको एक बात बताती हूँ कि चलो मान लो तुमको एक बोला गया है, तुमको एक अननोन सब्सटेंस दे दिया. ठीक है, लेट्स से दिस इज द अननोन सब्सटेंस. ठीक है, तुमको एक अननोन सब्सटेंस दे दिया और तुमको एक मैग्नेट दे दिया. ठीक है, अननोन सब्सटेंस, मैग्नेट दे दिया. नाउ यू नीड टू टेस्ट इट आउट कि भाई ये जो अननोन सब्सटेंसेस है क्या वो एक मैग्नेट है या नहीं है. यू नीड टू डिसाइड दैट. हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. कैसे करने वाले हो तुम ये काम. देखो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ एक आइडिया. सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाओगे. ठीक है, जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस अननोन सब्सटेंस के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, अगर ये जो सब्सटेंस है वो इससे स्टिक हो गया, इससे जाके स्टिक हो गया, तो हम समझ जाएंगे ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है. आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है. ठीक है, कुछ अलग एलॉय हो सकता है जो कि एक क्या हो सकता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है. बट दैट इज द मेन थिंग. अट्रैक्शन में तो तुम्हें सिर्फ यही पता चलेगा कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है या नहीं. मैग्नेट का कैसे पता चलेगा, मैग्नेट का पता कैसे चलेगा. लेट्स से पहली बार तुम नॉर्थ पोल पास लेके जा रहे थे, वो अट्रैक्ट हो गया. लेट्स से इमेजिन. ठीक है, अब की बार क्या करो, साउथ पोल को इसके पास लेके जाओ. साउथ पोल इसके पास लेके जाओगे और वहां पे रिपल्शन तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये एक मैग्नेट है. समझे? सो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, अट्रैक्शन से तो तुम्हें सिर्फ ये पता चलेगा कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है या नहीं, बट रिपल्शन से यू विल बी गेटिंग श्योर दैट यस इट इज अ मैग्नेट. ठीक है, तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. देखो, सिंस अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बट इट विल आल्सो ऑलवेज रिपेल द मैग्नेट ओनली. ठीक है, अब जब आप क्या करोगे, नॉर्थ पोल को पास लेके जाओगे, हो सकता है ये अट्रैक्ट हो जाए. तो भाई अट्रैक्शन में तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैग्नेट हो, क्योंकि हमने देखा था नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट होते हैं, तो दूसरी मैग्नेट भी अट्रैक्ट हो सकती है और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं. अगर ये अट्रैक्ट हो जाता है नॉर्थ पोल से, तब ये तो पक्का हो जाएगा कि ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है. बट मैग्नेट कैसे प्रूफ होगा, वो सिर्फ रिपल्शन से होगा. तो अब की बार हम ट्राई करेंगे साउथ पोल को पास लेके जाने का, और साउथ पोल को पास लेके जाएंगे और हमें रिपल्शन मिल जाए. अगर हमें रिपल्शन मिल जाए तो क्या होगा, इसका मतलब पक्का पक्का है ये एक मैग्नेट है. और अगर रिपल्शन नहीं मिलता है साउथ पोल को लेके जाने पर, तो हम बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ मैग्नेट बट इट इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, नाउ यू कैन गेट दैट. आपको अच्छे से चीजों को पता चल जाएगा भाई इट इज ट्रू और नॉट. ठीक है, ऑलराइट, लिख लिया आप लोगों ने. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चंस करते हैं. तो सी, it was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet. Its body is made up of plastic. Why is it so? Because maybe there is some, do you know that there is a blade inside the sharpener which sharpens your pencil? So that blade is actually made up of iron. तो हो सकता है उसका प्लास्टिक बॉडी हो, फिर भी वो उससे अट्रैक्ट होगा. क्यों? क्योंकि उसका जो क्या होता है, ब्लेड, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड यू कैन से स्टील ऑल्सो, राइट. तो स्टील से भी बना होगा तो भी वो अट्रैक्ट हो जाएगा. इट इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस बेसिकली. सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल. एक बार मैग्नेट तुम्हें दे दिया लेकिन मार्क करके नहीं दिया कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है. हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज द नॉर्थ पोल लोकेटेड. कैसे पता करोगे तुम, तो तुम्हें पता करने के लिए क्या चाहिए, दूसरा मैग्नेट चाहिए. दूसरा मैग्नेट से अट्रैक्ट करवाओ तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया तो मतलब अपोजिट पोल, दैट मीन्स तुम लोग मार्क कर पाओगे साउथ है या नॉर्थ है. सिंपल. सो मेक श्योर यू यूज द अनदर मैग्नेट टू चेक दैट आउट एंड यू कैन डू दैट. ऑलराइट, सो दैट इज इन दिस लेक्चर. लेट्स एंड द लेक्चर. ऑलराइट,
So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.